ہیلی کاپٹر، ٹینک اور فوجی ساز و سامان مہیا کرے۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے افغانستان کی تعمیر نو اور افسروں کی تربیت کے تحت $2 بلین امریکی کی سرمایہ کاری کی ہے۔ تاہم پاکستان کی ناراضگی کا لحاظ رکھتے ہوئے ہندوستان نے اسلحہ اور مسلح افواج کو افغانستان نہیں بھیجا ہے۔ بنگلہ دیش میں جنگی جرائم کے مجرم جماعت اسلامی کے رہنما عبدالقادر ملا کو پھانسی سے عبوری راحت ملی ہے۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے عبدالقادر ملا کی سزا پر روک لگا دی ہے۔ بنگلہ دیش کی وزارت داخلہ نے جنگی جرائم کے قصوروار عبدالقادر ملا کو منگل اور بدھ کی شب پھانسی دینے کا اعلان کیا تھا۔ تاہم عبدالقادر ملا کے دفاعی وکیلوں کی جانب سے اس معاملے کو ہنگامی طور پر سپریم کورٹ کے جج سید محمود حسین سے رجوع کرنے پر جج نے پھانسی کو بدھ کی صبح تک ملتوی کرنے کے احکام جاری کیے تھے۔ بدھ کی صبح سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران عبدالقادر ملا کے وکیلوں نے عدالت سے اس فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی۔ دفاعی وکیلوں کے مطابق سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواست پر سماعت مکمل ہونے تک پھانسی پر عمل درآمد پر روک لگا دی ہے۔ মাননীয় চিফ জাস্টিস ইন্ডিকেট করেছেন যে আমরা শুনানি শুনছি, অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব আছেন এবং এটাই হচ্ছে নিয়ম, এবং আমরা পিটিশন দিয়েছি যে আমাদের স্টে এক্সটেনশনের পিটিশন আছে, সুতরাং যতদিন পর্যন্ত এই শুনানি চলবে ততদিন পর্যন্ত এই রায় কার্যকর করা যাবে না। دوسری جانب اٹارنی جنرل محبوب عالم کا کہنا ہے کہ ملک کے آئین اور قانون کے مطابق جنگی جرائم کے قصورواروں کو خصوصی ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ দুইতে আছে যে যারা নাকি মানবতা বিরোধী আইনের সাথে, মানবতা বিরোধী অপরাধের আইনের সাথে যুক্ত বা দণ্ডিত, তারা কোনো প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে পারবেন না। যেহেতু কাদের মোল্লা মানবতা বিরোধী অপরাধের জন্য দণ্ডিত, সেই জন্য তিনি যে প্রতিকারের জন্য সুপ্রিম কোর্টে যে দরখাস্ত করেছেন রিভিউ, এটা আইনের দ্বারা, সাংবিধানিক বিধান দ্বারা এটা বাড়িত۔ قبل ازیں عبدالقادر ملا کو اچانک پھانسی دینے کے فیصلے پر ان کے اہل خانہ نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ সকালে পর্যন্ত এখানকার জেল কর্তৃপক্ষ বলেন যে আমরা 7 দিন উনি মার্সি পিটিশন সময় পাবেন পুরানো জেল কোড অনুসারে, তারপরেও পুরানো জেল কোড আরো বলা হয়েছে 21 দিন আরো সময় পাবেন। এই সময়টা কনসিডার না করে হঠাৎ করে যেভাবে আমাদেরকে ডেকে আজকে জানা হলো, এটা ওনাকে হত্যার পর্যায়ে পড়ে। ওনাকে জোর করে এভাবে ফাঁসি দেওয়াটা হত্যার পর্যায়ে পড়ে। দিস ইজ এ পলিটিক্যাল কিলিং۔ جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے رہنما کو پھانسی دینے کے اعلان کے بعد ملک کے حالات مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے انتباہ دیا ہے کہ اگر عبدالقادر ملا کو پھانسی دی گئی تو حالات مزید سنگین رخ اختیار کر جائیں گے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ اس کے رہنماؤں کو جنگی جرائم میں ماخوذ کرنے کے پیچھے سیاسی عوامل کار فرما ہیں۔ واضح رہے کہ 1971 میں بنگلہ دیش کی جنگ آزادی کے دوران جنگی جرائم میں ملوث پائے گئے اب تک 6 افراد کو موت کی سزا سنائی گئی ہے، جن میں جماعت اسلامی کے سرکردہ رہنما اور اپوزیشن پارٹی BNP کے لیڈر بھی شامل ہیں۔ اس معاملے پر گزشتہ کئی ہفتوں سے بنگلہ دیش میں احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ مظاہروں کے دوران اب تک درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بیورو رپورٹ ETV نیوز۔ وسطی افریقی جمہوریہ میں مسلحی تشدد سے حالات مسلسل بگڑتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت بنگوئی میں منگل کے روز عیسائی بلوائیوں نے مسلمانوں کی دکانوں کو لوٹا اور کئی املاک کو تباہ کر دیا، جن میں ایک مسجد بھی شامل ہے۔ ملک کے عبوری صدر مشل جوٹورڈیا نے مسلحی تشدد کے لیے برطرف کیے گئے سابق صدر فرانسوس بوزیزے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اپنے ایک حالیہ بیان میں عبوری صدر نے موجودہ حالات کے لیے برطرف کیے گئے صدر کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سابقہ صدر کا دیا ہوا ہے۔ Bouzizi a programmé génocide, a distribué machettes, a distribué Kalachnikov. Et en tissant quoi gestion chaotique qui est à Kada. Alors, est-ce qu'un budget te dit en 2 mois, en 8 mois, il est capable de rétablir ils sont passés dans la RCA? اس دوران ایک مقامی شہری نے اپنا نام بتائے بغیر کہا کہ پہلے مسلمانوں نے عیسائیوں کو لوٹا اور اب انتقام کے طور پر عیسائی مسلمانوں کو لوٹ رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کے تشدد کے بعد اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کی ایک قرارداد کے تحت بانگوئی میں حالات پر قابو پانے کے مقصد سے فرانس کے 1600 فوجیوں کو تعینات کیا گیا تھا، جبکہ افریقی مشن کے
2500 फौजी पहले ही वहाँ मौजूद हैं। फ्रांस के वजीर दिफा ने कहा है कि हालात काबू में करने के लिए फ्रांसीसी फौजियों की इतनी तादाद काफी है। ताहम बढ़ते तशद्दुद के पस मंजर में वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में 1994 के रुवांडा कत्ले आम जैसे हालात पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के बीच खेला गया तीसरा वनडे बारिश की नजर हो गया। इससे कबल सीरीज टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए जनूबी अफ्रीका ने टीम इंडिया को 302 रन का हदफ दिया था। जनूबी अफ्रीका की जानिब से क्विंटन डी कॉक और AB डिविलियर्स ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सेंचुरियां बनाई, जबकि डेविड मिलर ने नाबाद 56 रन बनाए। टीम इंडिया की जानिब से ईशांत शर्मा ने 10 ओवरों में 40 रन देते हुए 4 विकेट हासिल किए, जबकि मोहम्मद शमी ने 3 विकेट झटकाए। वाज़ेह रहे जनूबी अफ्रीका 2 वनडे जीतकर सीरीज पर पहले ही कब्जा कर चुकी थी। आखिर में सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में बीजेपी के वज़ीर आला के उम्मीदवार हर्षवर्धन को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज तलब किया। हुकूमत साजी पर किया जाएगा तबादले ख्याल। रमन सिंह आज लेंगे तीसरी मियाद के लिए छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला के ओहदे का हलफ। पार्टी के सरकर्दा लीडर्स करेंगे शिरकत। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आज से होगा आगाज। तेलंगाना बिल पर हो सकती है बहस। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हमजिन्स परस्ती को करार दिया मुजरिमाना फेल। उम्र कैद तक की हो सकती है सजा। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। अन्ना हजारे के एहतजाज में आज करेंगे अरविंद केजरीवाल शिरकत। स्टेज के बजाय आम लोगों में बैठने का मंसूबा। और हामिद करजाई 4 रोजा दौरे पर आज पहुंचेंगे दिल्ली। वज़ीर आज़म और दीगर सरकर्दा लीडरों से असलहा सप्लाई और दीगर उमूर पर होगी बातचीत। दुनिया में फिलहाल इतना ही। चलते एक वक्फे के बाद देखेंगे ET उर्दू कश्मीर। आदाब। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नाज़रीन उर्दू कश्मीर में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद सियासतदानों को बदलनी होगी अपनी रिवायती सोच। उधमपुर में उमर अब्दुल्ला का खिताब। आवाम को मेयारी पानी फराहम करने के लिए हुकूमत शुरू कर रही है कई प्रोग्राम। श्यामलाल शर्मा का बयान। CCTU के तहत किया जाएगा इक़दाम। और कश्मीर में पहाड़ों की खूबसूरती के लिए जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी। आलमी यौम कोहे पैमाई के मौके पर माहिरीन ने दिया जोर। अब तफसील।
نوگام بائی پاس سری نگر میں ملیٹنٹوں کے حملے میں سی آر پی ایف کا ایک ASI ہلاک ہو گیا. حملے میں ایک اور CRPF جوان زخمی بھی ہو گیا. حملہ آور ملیٹنٹ جائے واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، تاہم علاقے کو محاصرے میں لے لیا گیا ہے اور حملہ آوروں کی تلاش جاری ہے. بتایا جاتا ہے کہ حملے 2 ملیٹنٹوں نے کیے. واضح رہے کہ نوگام بائی پاس میں رواں سال کئی ملیٹنٹ حملے ہوئے ہیں. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے دہلی کے اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کی جیت کو کیجریوال کی بڑی حصولیابی سے تعبیر کیا ہے. عمر عبداللہ ادھمپور کے جگانو علاقے میں امید اسکیم کے ایک پروگرام میں شرکت کے موقع پر میڈیا سے بات کر رہے تھے. اس موقع پر وزیر اعلی نے امید اسکیم کے تحت سیلف ہیلپ گروپوں میں چیکس تقسیم کیے. عمر عبداللہ نے کہا کہ صاف و شفاف سیاست کرتے ہوئے جیت حاصل کر کے عام آدمی پارٹی نے ملک کے سیاستدانوں کے لیے مثال قائم کی ہے. ہم سیاست کرنے والے لوگ ہمیں اپنی سوچ کو جو ہے بدلنا، ہمیں اپنی سوچ میں بدلاؤ لانا ہوگا، کیونکہ لوگ اب پرانے طریقے جو ہیں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. دلی کے الیکشن کا نتیجہ دیکھیے. کل تک جس شخص کو ہم جانتے بھی نہیں تھے، کل تک جس شخص کو انا ہزارے صاحب کا جو ہے ایک سایہ مانا جاتا تھا، اس شخص نے دلی کی سیاست نہیں ملک کی سیاست بدل دی، پلٹ دیا. انہوں نے ثابت کیا کہ لوگ ایک نئی سوچ چاہتے ہیں، ایک نیا طریقہ چاہتے ہیں. وہ پرانی باتوں پہ اور پرانے وعدوں پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک کی ترقی میں خواتین اہم کردار ادا کرتی ہیں. کو ہمیشہ یہ غلط فہمی رہی ہے کہ ہم ترقی کرتے رہیں گے اور جب تک ہم ترقی کریں گے تب تک ریاست جو ہے وہ ترقی کرے گی، لیکن یہ غلط ہے. میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک مرد عورت دونوں مل کے ترقی نہیں کرتے، آگے نہیں بڑھتے ہیں، تب تک یہ ریاست جو ہے کبھی ترقی نہیں کرے گی، یہ ملک ترقی نہیں کرے گی. ہم ریزرویشن کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہماری بہنیں جو ہیں ریزرویشن سے آگے بڑھیں گی. کیوں؟ شروعات بے شک ریزرویشن سے ہو، لیکن ایسی میں مان کے چلتا ہوں کہ موقع ملنے پہ ہماری بہنیں جو ہیں کہیں پہ بھی کم نہیں ہیں. ریاست کے عوام خاص طور پر دور دراز علاقوں کے لوگوں تک پانی کی بہتر سپلائی کے لیے حکومت کیپیسٹی کمیونیکیشن ڈیولپمنٹ یونٹس کے تحت کئی پروگرام شروع کرے گی. اس بات کی جانکاری وزیر برائے PHE شام لال شرما نے دی. شرما جموں میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. شرما نے کہا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے NHRM اور پنچوں اور سرپنچوں سے تعاون حاصل کیا جائے گا. شام لال شرما نے کہا کہ آنے والے دنوں میں لوگوں تک پانی کی بہتر اور معیاری سپلائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے. وہ ہمارے پاس نہیں اس سمے. ایک ہمارے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں، یہ بھی ہم نے ادھار سے لیے ہوئے ہیں، ابھی ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے. اور ایک ہم نے اسٹیٹ لیول کا کوآرڈینیٹر جو ہے وہ، اور اس سے پہلے جو فارمیشن تھی وہ ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھے. صرف اس سے پہلے جو تھے وہ صرف ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں سے 1-2 جن تو سپورٹ ملی ہوگی. اب میرا یہ ہے کہ یہ فل فارم میں آ جائے، پوری اس کی فارمیشن آ جائے، جو 4 اس کے پروٹوکول ہیں وہ پورے سیٹ اپ ہو جائیں اور گراؤنڈ لیول پہ اس کا امپیکٹ آنا نظر آئے. کیونکہ آج ہمیں سب سے بڑی جو ہے کہ کیا ہم لوگوں کو کوانٹٹی کی بھی بات کریں گے، کوالٹی کی بھی بات کریں گے، اور مین فوکس ہمارا جو ہے وہ کوالٹی واٹر پہ ہے. جموں میں محکمہ PDD کے نیڈ بیسڈ ورکرز کا احتجاج جاری ہے. احتجاجیوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 سال سے نیڈ بیسڈ ورکرز کی تنخواہیں
नहीं दी गई हैं। एहतजाजियों का कहना था कि उनकी तनख्वाह जल्द वागुजार की जाए, साथ साथ नीड बेस्ड वर्कर्स और महकमे में काम कर रहे कैजुअल वर्कर्स को मुस्तकिल किया जाए। हमें 6 दिन हो चुके हैं स्ट्राइक पे उतरे हुए हैं। तो हमारे साथ पिछले साल सीएम ने कमिटमेंट किया था 16 फरवरी को कि 28 फरवरी को आपको वेजेस दी जाएगी। 6.5 करोड़ रुपया रिलीज कर दिया, वो 28 फरवरी को हमें नहीं मिला। 2 साल हो चुके हैं, हमें पे नहीं मिली। हम काम कर रहे हैं, नीड बेस्ड कैजुअल लेबर काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी लिस्टें अभी तक डिवीजनों में पड़ी हैं। इसलिए हमने तंग आके चीफ ऑफिस में स्ट्राइक पे हम उतरे हैं। सीआईटीयू से वाबस्ता ट्रेड यूनियनों ने जम्मू में एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी रियासती और मरकजी सरकार की गलत इक्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ किया गया। एहतजाजियों का कहना था कि कीमतों में इजाफा, बढ़ती बेरोजगारी और बदउनवानी से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। ट्रेड यूनियनों का कहना था कि वर्किंग क्लास के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कि जब तक इन्हें वो पक्का नहीं किया जाता, इनकी पक्की नौकरी नहीं की जाती, तब तक इन्हें जहां स्टेट में मिनिमम वेज जो है लागू किया जाए। कम से कम 150 रुपया रोज जो है इन वर्कर, जो वुमेन वर्कर है, इनको दिया जाए। वैसे हमारी मांग है कि कम से कम सीटों की मांग असूली तौर पर जो है कि 10,000 पर मंथ से कम किसी की भी मजदूरी नहीं होनी चाहिए। जिला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ कॉलेजों में काम कर रहे कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चररों ने तनख्वाहों में इजाफा और मुलाजमत मुस्तकिल करने की मांग की। कॉलेज लेक्चररों ने कुपवाड़ा में ईटीवी से बात करते हुए कहा कि उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हो रहा है, जबकि कई लेक्चरर गुज़िश्ता 10 साल से बतौर कॉन्ट्रैक्चुअल काम कर रहे हैं। इस मामले को जब ईटीवी ने आला तालीम के वजीर मोहम्मद अकबर लोन के साथ उठाया तो उन्होंने यकीन दिलाया कि बहुत जल्द उनके जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मांग है कि हमें जो कंटिन्यूएशन जो पिछले 10 साल से कोई काम कर रहा है, 5 साल से या 15 साल से हम काम कर रहे हैं, कि जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है कि जिस तरह डॉक्टर्स का मुतालबा इनको 5 साल के बाद कंफर्म किया जाता है, हम ये चाहते हैं कि हमें 5 साल या 7 साल जो ये पीरियड रखेंगे, एक मुकम्मल पीरियड रखेंगे और उसके बाद हमें ये कंफर्म करेंगे कि अब आप कंटिन्यू है। तो मामला समझ में नहीं आ रहा है, ये लोग हमें साफ क्यों नहीं कह रहे हैं कि भाई आप 8,000 भी काम कर लो या फिर 12,000 रुपये काम कर लो, या फिर एक बार ये कह रहे कि आपकी पे हाइक नहीं होगी, तो बार बार हमें ये सुनना पड़ रहा है हो जाएगी, होगी, तो वो फाइल जाती कहाँ है। कंट्रैक्चुअल्स का काम है, उनका पे एनहांस हम करने जा रहे हैं। हम वो हमारे गौर है, हर जगह मुझे इसके लिए हर रोज मुझे कभी न कभी अखबारों के जरिए या पर्सनल जब भी कॉलेज का जाता हूं तो वहां पर वो लेक्चरर्स, मुझे क्वालिफाइड लेक्चरर्स है, उनको बहुत कम कलील तनख्वाह मिलती है, हम उनको बढ़ाने जा रहे हैं। और साथ ही में जो कंट्रैक्चुअल्स जो जिनकी 7 साल की एग्रीगेट है, उसकी अलहदा एक पॉलिसी हम अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूं, मैं उनको ये उम्मीद देना। सरकारी दफ्तरों में वर्क कल्चर को बेहतर बनाने की गर्ज से अनंतनाग की जिला इंतजामिया ने बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम शुरू की है। इस मुहिम के तहत फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के 10 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है। ये मुलाजिम ड्यूटी से गैर हाजिर थे। इसके अलावा एक शिकायत के बाद डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग की हिदायत पर तहसीलदार अनंतनाग ने महकमा सॉइल कंजर्वेशन के दफ्तर पर अचानक छापा मारा, लेकिन दफ्तर को तालाबंद पाया, जिसके बाद दफ्तर को सील कर दिया गया और वहां तैनात सभी मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया और महकमे के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों में जिला इंतजामिया अनंतनाग के खुसूसी चेकिंग स्क्वाड ने मुख्तलिफ सरकारी दफ्तरों पर छापे मारे और 60 से ज्यादा मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया है।
शिकायत मिली है कि ऑफिस लॉक्ड है, कोई एम्प्लॉई नहीं है। तो मैं फिर आ गया 3 बजे, तो मैंने देख लिया ऑफिस वाज लॉक्ड, तो मैंने इसको सील कर दिया। और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के 10 मुलाजिम जो डिप्टी डायरेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के वो गैराज थे, तो वो तो सस्पेंड हो गए। तो इसलिए मेरी गुजारिश इनसे है, जो भी एम्प्लॉई है, ऑफिशियल है, ऑफिसर्स है, वो वक्त पर आए और पूरी ड्यूटी निभाए और उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वन हु विल बी नॉट एबल टू अटेंड हिज ड्यूटीज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में। बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटी उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। महकमा एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर डोडा ने तरवन में 2 रोजा रोजगार मेला मुनक्किद किया। ये पहला मौका है कि किसी शहर से दूर गांव में रोजगार मेले का इनेकाद किया गया। इस मेले के मुनक्किद होने से पूरे इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। रोजगार मेले में 3000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की और सैकड़ों बेरोजगार नौजवानों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस मेले में 22 महकमों ने अपने स्टॉल लगाए थे। स्कीमें जो होती थी वो आमतौर पर शहरों में हुआ करती थी, बाजारों में हुआ करती थी, लेकिन जब से यहाँ हमारे त्रोना एरिया में जो रोड आ गई है तो उसके बाद आज पहली दफा में ये मेरी 35 साल उम्र है, मैं तो आज पहली बार देख रहा हूँ कि एम्प्लॉयमेंट की तरफ से ये मेला हो रहा है। मेला हमने आज तक 3-4 सालों के बाद आज यहाँ पे देखा है। ये स्कीमें आज तक हम ऐसे जैसे पिछड़े इलाकों में नहीं देखी। 2 दिन का एम्प्लॉयमेंट फेयर यहाँ त्रोन में लगाया गया। आप देखते हैं कि ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ इसकी जानकारी देना, जो भी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासिन ने कहा है कि दफा 370 को खत्म करना किसी के बस की बात नहीं है। वो गुंडाली नायक बडगाम में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दफा 370 पर डिबेट की बात को छोड़कर इस दफा को मजीद मजबूत बनाने की जरूरत है। इस मौके पर अवामी मुत्तहिदा महाज के दीगर लीडरों ने भी खिताब किया। इन लीडरों ने कहा कि रियासत में लोग अब सियासी बदलाव के हक में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर देवेंद्र राणा ने कहा है कि बीजेपी के वजारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी मुल्क के लिए खतरा हैं। देवेंद्र राणा राजौरी में पार्टी कारकुनों की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर देवेंद्र राणा ने कहा कि दफा 370 मुस्तकिल है और कोई भी इसको नहीं हटा सकता। मीटिंग में अजय सलोत्रा के अलावा कई दीगर पार्टी लीडरान ने भी शिरकत की। और अगर हमने भी अभी भी इस बात का एहसास नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे अपने खेमे में दरार पड़ जाए, सब लोग साइड पे बैठे रहे, भाजपा कहीं निकल के आ जाए। मुकाबला आज भाजपा के साथ है। आज मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस का सीधा जम्मू सूबा में भाजपा के साथ है, किसी और के साथ मुकाबला ही नहीं है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कुलगाम की तालबात ने कुलगाम में इंस्टीट्यूट के सुपरिंटेंडेंट की तरफ से एक तालबा के साथ मुबैना तौर पर नाशाइस्ता सलूक
और तलबा को दिलचस्पी से न पढ़ाने के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी तालिबात ने काफी देर तक कुलगाम दमहाल रोड पर ट्रैफिक की नक्ल हरकत रोक दी। पुलिस की मुदाखलत के बाद एहतजाज खत्म हुआ, लेकिन सुप्रिंटेंडेंट ने इल्जामात को खारिज करते हुए कहा कि मामले की तहकीकात की जाएगी। पनामा उडर गांधरबल से ताल्लुक रखने वाली खवातीन के एक ग्रुप ने डीसी ऑफिस गांधरबल के सामने महकमे बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। इन खवातीन का कहना है कि इनका इलाका काफी अरसे से बिजली सप्लाई से महरूम है, जिसकी वजह से सर्दी के दिनों में उन्हें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमें 2 साल हो गए पावर नहीं है, और वहाँ के लैंडमैन जो हैं वो भी नहीं हमें देखते हैं, नजरअंदाज किया। हम गरीब लोग हैं, फिर मांगे हमारी पूरी नहीं करते। हम शम्मा जलाते हैं, रात को खाना खाते हैं, पावर नहीं होता। कभी शम्मा लाते हैं, कभी पैसा नहीं है, मजदूर है तो शम्मे के लिए भी हमें पैसा नहीं। सीनियर कांग्रेस लीडर श्यामलाल शर्मा ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें लाल बत्ती का गलत इस्तेमाल न करने की हिदायत दी है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि लाल बत्ती के इस्तेमाल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नजर पार्टी ने ये हिदायत दी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी लीडरशिप भी बहुत बार हमारी लीडरशिप ने, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूं, मैडम सोनिया गांधी जी और राहुल जी ने भी हमें ये डायरेक्शन भी दी है और इंस्ट्रक्शन भी कही है कि हम पॉलिटिशियन लोग जो हैं, खासकर मिनिस्टर, एमएलए, एमपीज, हम लोगों की सुविधा के लिए हैं, सुविधा के लिए नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को वेलकम करना चाहिए। श्रीनगर में इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग एसोसिएशन की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहाड़ों की वजह से सियाहत को फरोग मिल रहा है। मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि जंगलात को तहफ्फुज फराहम किया जाना चाहिए। इस मौके पर डीसी श्रीनगर मेहमान खुसूसी थे। जितनी भी कंट्रीब्यूशन है, 2 दिनों से दिल्ली में थे, आज स्ट्रेट दिल्ली से श्रीनगर आ गए और वहाँ से हमारी रियासत इसको हिमालयन स्टेट कहते हैं, क्योंकि हम हिमालय में बस रहे हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है वो पहाड़ को देखने आता है, वो ग्लेशियर को देखने आता है, हमारे रिवर्स जो पहाड़ों से आते हैं, फिर हमारे माउंटेन लेक्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जो देखने वो यहाँ आते हैं। लोग हमारे यहाँ प्लेन्स देखने नहीं आते, वो उनको घर में भी है। तो इस लिहाज से इसकी पहाड़ों की हमारे लिए बहुत ही खास इम्पोर्टेंस है। कोह पैमाई के आलमी दिन के मौके पर अनंतनाग में भी एक गैर सरकारी तंजीम अल-अहद फाउंडेशन की जानिब से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में जिला इंतजामिया से वाबस्ता आला अहदेदारान, कोह पैमाओं और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा तालिब इल्मों की एक खासी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने वादी कश्मीर में कोह पैमाई और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोशनी डाली और कश्मीर की मईशत और सियाहत में कोह पैमाई के रोल के बारे में जानकारी दी। बाज़ मुकर्रिरीन का कहना है कि अगरचे वादी में कोह पैमाई के बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी और नामुनासिब तशरीह की वजह से वादी कोह पैमाई के नक्शे पर पूरी तरह से नहीं आई है। उनका सिलसिला जारी रहेगा एक वक्फे के बाद। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। लखनऊ में वाक़ दरगाह हजरत मखदूम शाह मीना रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत, देखिए प्रोग्राम बारगाह अकीदत में।
की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर।